हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपकी एग्ज़ाम अच्छी गई होंगी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकॉल क्वेश्चंस इन आवर एग्ज़ाम। तो ये सेट 1 है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द INI CET 22, ठीक है। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी विल फर्स्ट कवर द इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड उसके बाद हम थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन बाय ट्रॉमेटिक इनोकुलेशन विच स्प्रेड अलॉन्ग लिम्फेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कॉज दिस। तो सबसे पहले सबके दिमाग में वही चला कि इट इज़ स्पोरोथ्रिक स्टिंग की, बट गाइज क्वेश्चन में क्या था? यस, क्वेश्चन में था एक्सेप्ट, तो यस आंसर इज स्ट्रैप ऑरियस। सो लुक ओवर हियर, this is the lymphatic spread, but it is doesn't caused by strep aureus. That is the answer. Now the next question is identify the given image, and you can see here, yes, I can erase this. You can see here the two leads are attached. तो ये कहाँ होता है guys? Yes, it is in the ankylobliferon, ठीक है। Now the next question is identify the given image, and you can see here, yeah, you can see here, this is the hypopion and it is caused due to hypema, ठीक है। it is caused due to hypema, ठीक है। Few days back, I joined the Bhatia classes, and before INI CET, I attended almost 6 to 7 hours offline classes of Bhatia, and you don't believe it, guys. वहाँ से इतने सारे questions आए थे, and why I am sharing this because I received email from Bhatia जहाँ उन्होंने बताया है कि they have offline campuses. So उन campuses में वो आपको लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, हॉस्टल्स जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि कोई अदर क्लासेस आपको रीडिंग रूम, हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। इफ़ अगर 6 to 7 आवर्स में आपको इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर आपने भाटिया से ऑफलाइन नहीं पढ़ा ना, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। गो एंड चेक देयर ऑफिशियल साइट्स, एंड द वन थिंग आई वांटेड टू से अबाउट 120 सिटीज़ में उनके ऑफलाइन सेंटर्स है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू अपडेट यू ऑन इंस्टाग्राम अबाउट दिस। 19-year-old female, history of swelling since 6 months, moves with deglutination and invade anterior strap muscle. What is the diagnosis? Yes, we have 4 options: follicular adenoma, medullary carcinoma, thyroglossal cyst, and papillary carcinoma of thyroid. You can see over here, this is the significant finding in papillary thyroid carcinoma. So it is seen in PTA, okay, it is seen in PTA. Now the next question is, you can see this is the given image, and ये क्या है guys? Yes, these are the keratin pulse. So in this image you can see the keratin pulse, and we have the given history of P40 positive. तो ये कहाँ होता है? Yes, it is seen in squamous cell carcinoma, ठीक है। Now the next question is, you can see here, what is this? Is finding seen in dermatomyositis. तो ये क्या है guys? Yes, these are the Gottran's papule, ठीक है। Now the next question is, look over these tonsils. This was the given image, and the question is, this yellow exudates in the tonsil seen in. So yes, it is due to the ABCA1 gene defect, and it is seen in Tangier's disease, ठीक है। Now the next question is difference in side effect of an oxcarbamazepine. So yes, we have many options, but the right answer is hyponatremia, ठीक है। Now the next question is history of Hodgkin's lymphoma, and you can see the pathological finding where Reed-Steinberg cells are present with constitutional symptoms are present. So what is the answer? Yes, it is CD positive 15, and it is CD positive for 30, ठीक है। Now the next question is senile atrophy is due to. Yes, we have 4 options, ठीक है। तो वहाँ क्या क्या ऑप्शन थे? इनर्वेशन, ड्यू टू वर्कलोड, और ड्यू टू इंक्रीज इन एज, एंड ड्यू टू रिड्यूस द यूज। तो सही आंसर क्या था? सेनाइल अट्रोफी। सेनाइल मीन्स yes, it is old age, तो इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन एज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैपल सिरप यूरिन डिसीज कॉज ड्यू टू। ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है।
तो what is the answer? Yes, it is due to the decrease in activity of BCKD, that is branched chain alpha keto acid dehydrogenase. ठीक है. Now the next question is sildenafil act through. So it is act through, yes, it is act through NO and through CGMP, and it is, yes, it is also positive for selective PDE5 inhibitor. तो guys क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ABCD AB मैच द फॉलोइंग, बहुत आई थिंक द क्वेश्चंस वाज वेरी लेंदी, बट ठीक है, कैसे तो भी हमने मैनेज कर लिया. तो सिल्डेनाफिल एक्ट थ्रू, यस, इट इज NO एंड CGMP विथ सिलेक्टिव फॉर PDE5 इनहिबिटर्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MgSO4 टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन क्या है? तो यस, इट इज़ द लॉस ऑफ नेचर. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन इमेज. ये देखो एक इमेज. तो व्हाट इज दिस गाइस? यस, दिस इज द किल्मान्स नीडल्स. तो इस किल्मा नीडल्स में इसका काम क्या है? यस, इट इज़ यूज फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर? सो एस, इट इज MAP माइनस ICP, that is mean arterial pressure minus intracranial pressure. ठीक है. तो that is the answer. Now the next question is use of hand sanitizer. तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था गाइस, मैंने पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था. तो दिस इज, यस, दिस इज इन विजिबल स्वेलिंग ऑन हैंड. ठीक है. दैट इज द यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विथ मास इन एपिगैस्ट्रियम एंड देयर इज history of positive CD117 and S100 negative and cytokeratin also absent. So what is the diagnosis? Yes, it is GIST. Which of the following not used to diagnose breast carcinoma? So we have four options: biopsy, radiology, PET CT and clinical examination. तो guys we know that कि breast carcinoma को diagnose करने के लिए ट्रिपल असेसमेंट होता है. तो देयर वी चेक फॉर बायोप्सी, रेडियोलॉजी में भी देखते हैं हम. ठीक है. उसके बाद में जैसे मैमोग्राफी वगैरह. ठीक है, इमेजिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो करती ही है. तो व्हाट इज द राइट आंसर? यस, राइट आंसर इज PET CT. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सर्स. सो वी हैव फोर ऑप्शंस. टेम्परेचर इज मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, PR इज मोर देन 90, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 एंड रेस्पिरेटरी रेट इज, यस, it is 20, more than 20. So what is the right answer? Which is not a criteria. ठीक है. तो ब्लड प्रेशर हम नहीं देखते, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सर्स. सो इट इज राइट आंसर. देन सर्स में और क्या देखते हैं हम? यस, वी चेक फॉर WBC काउंट. ठीक है, WBC काउंट भी देखते हैं हम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यूरोजेनिक शॉक. तो वी हैव मेनी ऑप्शंस लाइक हाइपरटेंशन विद टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन विद ब्राडिकार्डिया, से बहुत सारे ऑप्शंस थे. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज हाइपोटेंशन एंड ब्राडिकार्डिया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट, एक इमरजेंसी में एक पेशेंट रहता है विथ हिस्ट्री ऑफ निमोथोरेक्स. ठीक है, एंड आफ्टर फॉलोड बाय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. नाउ ड्यू टू स्टैब इंजुरी उसको क्या होता है? निमोथोरेक्स होता है. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप and the best next step for this patient? So yes, we have many options, but the right answer is ICD placement. ठीक है. Now the next question is gas diaphragm for the patient with POD, what would you do? ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? तो गाइज वी हैव मेनी ऑप्शंस. पूरा पेपर ऐसा था कि ABCD ABD, तो जैसे 1 2 3 करेक्ट और 1 2 करेक्ट. ठीक है, और 1 4 करेक्ट. तो राइट आंसर क्या था? सबसे पहले कभी भी अगर परफोरेशन हुआ ना, तो व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट, सबसे पहले हमें IV फ्लूइड देना ही है. उसके बाद में यस वी कैन डू द एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी, बट फर्स्ट स्टेप इज IV फ्लूइड. इट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट. बट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वुड यू डू. तो हमें दोनों करना है, IV फ्लूइड भी देना है एंड एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी भी करनी है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी and accept. So we have four options: better osmosis, reduce pain, third option is long time to discharge and early ambulation. So yes, it is better osmosis,
yes it is reduce the pain, long time नहीं, it is short time. तो benefit of laparoscopic surgery is it is very short time to discharge and yes early ambulation. ठीक है. Now what is the next question? Most common moderate to severe cause of blindness. So we have 4 options: diabetic retinopathy, refractory errors, cataract and glaucoma. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, 4 ऑप्शन थे अपने पास में. तो मोस्ट कॉमन कॉज तो पता है कैटरैक्ट था, तो यस मॉडरेट टू सीवियर तो इट इज ग्लाकोमा. ठीक है ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन सिक्वेले ऑफ कोविड. तो ये ना नीट पीजी का 2022 का क्वेश्चन है. इफ़ यू कैन चेक, मेरे चैनल में शायद अवेलेबल होगा, तो यू कैन सी दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही है गाइस, ये छोड़ना नहीं है. तो कॉमन सिक्वेले ऑफ कोविड इज यस इट इज follicular conjunctivitis. ऑप्शन में म्यूकरमाइकोसिस भी था, बट इज द कॉमन सिक्वेले इज follicular conjunctivitis. ठीक है ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडेटिव ऑफ चॉइस इन डिअरेंज्ड लिवर प्रोफाइल. तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से मुझे कुछ याद आ रहे हैं. डाइजेपाम, मिडाजोलम, ऑक्साजेपाम. तो कौन सा सेडेटिव यूज़ करना चाहिए इन डिअरेंज्ड लिवर प्रोफाइल? यस ऑक्साजेपाम. ठीक है ना. You can see the question, prophylactic dose of lithium in acute mania. So we have options like 0.5 to 0.8, 0.6 to 3, 0.6 to 1.5 and 2 to 3. So right answer is 0.6 to 1.5. Okay, so this is the prophylactic dose for lithium in acute mania. So these are the questions guys. Stay updated. मैं सेक्शन 2 के भी क्वेश्चंस कल सुबह अपडेट कर दूंगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स टेक थोड़ा ब्रेक, थोड़ा चिल करिए.